Good morning, friends. Welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. We have started the series of lecture on 11th economics, and so far we have delivered 4 lectures. In those 4 lectures, we have covered definition of economics, subject matter of economics. Then we have done central problems of an economy. Then we have done economic systems, and last of all, we have done production possibility curve. वो ये जितना भी पोर्शन हमने किया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज पार्ट बी ऑफ 11th सीबीएसई सिलेबस, वो पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है ना। उसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि पैरेलल आपको जो पार्ट ये है स्टैटिस्टिक्स भी करवाया जाए। तो आज वी आर हियर विद फर्स्ट लेक्चर ऑन statistics and introduction. Here I will introduce you to the term statistics, basic characteristics, function, importance of statistics. So let us begin with this lecture on statistics. Friends, now the term statistics, just see the term statistics, this has been derived from Latin word, just hold on. This is derived from Latin word status, which means political state. तो ये वर्ड जो है political state वर्ड से आता है, और इस टर्म को सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट था गॉटफ्राइड एकेनवेल। इसने 1749 में इस टर्म को यूज किया। तो पहली बात तो ये आ गई कि स्टैटिस्टिक्स टर्म आई कहाँ से, लेटिन वर्ड स्टेटस विच वाज रिलेटेड विद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टेट, एंड देन इस टर्म को बेसिकली दिया जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड एकेनवेल ने, हु इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि ये आपको ऑब्जेक्ट एक नंबर के क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उसके लिए ये जो मैं येलो पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ये टर्म्स आपके लिए एक नंबर में बन जाती हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव्ड, हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, who has coined the term statistics, Gottfried Ekenwell. Now what is the statistics? देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, स्टैटिस्टिक्स इज एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, नंबर्स में जो एक्सप्रेस किया जा सके। लेकिन नंबर ऐसा नहीं कि एक इकोनॉमिक्स के नंबर ले लिए, एक बायोलॉजी के नंबर ले लिए, ऐसे नहीं। वो बताऊंगा कि किस तरह के नंबर्स की बात करते हैं। देखो क्या लिखता है, इट इज बेसिकली मीन्स quantitative information, that is information which can be expressed in numbers, मैंने आपको पहले ही बताया। and it is also deals with the methods or techniques relating to the collection। देखो कहता पहला numbers, और उसके बाद the statistics term deals with collection, classification, presentation and interpretation of data. In fact, it is a data science, or here we are going to study the techniques of data collection, how to classify them, how to collect them, how to present them and how to interpret them। और short words में मैं कहूँ तो statistics is science of numbers। अब ये numbers कैसे हैं ये आगे आगे आपको पता चल जाएगा। Now coming to the definition part of statistics, statistics की definition 2 parts में दी जाती है, एक plural sense और एक singular sense। Now what is this plural and singular? Let us study. Now in plural sense, what we say, in plural sense the word statistics refer to numerical facts and figures collected in a systematic and definite manner। कहता है any collection of facts and figures collected in systematic manner, that is, and why you are collecting that numbers in systematic and definite manner, we have some specific purpose in mind. We have to derive certain conclusions, and to derive those conclusions we are dealing with those numbers। तो प्लूरल सेंस में क्या हुआ, इट इज जस्ट न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। और इसको अगर आप डेफिनेशन देखो अकॉर्डिंग टू बॉले, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, प्लेस्ड
इन रिलेशन टू ईच अदर, इसका क्या मतलब है अभी आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स देखो, आपको ये बता दूं, स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी डेफिनेशन है जिसको आपको चाहे कैलोग्राम करनी है, कैसे करना है, जो प्लूरल सेंस को पूरी ट्रूली इन ट्रू सेंस एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज दैट? लेट अस सी। वो डेफिनेशन है ये, देखो इसको, दैट इज गिवन बाय होरेस सेक्रिस्ट। लेट अस सी, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस होरेस सेक्रिस्ट। देखो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को आप जैसे मर्जी करो, इस डेफिनेशन को चाहे क्रैम करो, जैसे मर्जी करो। ये डेफिनेशन है जिससे 7 फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं। लेट अस स्टडी दिस डेफिनेशन इन डिटेल। और देखो, कई बार आप लोग इसको होरेस सेक्रिस्ट की डेफिनेशन तो लिखते नहीं और ये प्लूरल सेंस में डिफाइन करते जाते हो, तो दैट विल सर्व हाफ द पर्पस। आप देखोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जस्ट सी नाउ, देखो, अकॉर्डिंग टू होरेस सेक्रिस्ट, statistics mean aggregate, just see, let me see, this aggregate of facts, I write it as number 1। देखो, इसमें 7 फीचर्स निकलेंगे, स्टैटिस्टिक्स के 7 फीचर निकलेंगे इस डेफिनेशन से, और वही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यू जस्ट क्रैम वन डेफिनेशन, उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप आते जाएंगे। देखो, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि एक अकेला नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाता, वो एक ही तरह के नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैं आपकी क्लास में स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स में नंबर देख रहा हूँ, तो एक बच्चे का नंबर का कोई मतलब नहीं रहता। आई हैव टू कलेक्ट नंबर स्टैटिस्टिक्स मैथ नंबर ऑफ होल ऑफ द क्लास। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि सिंगल फैक्ट डजंट मेक सेंस, वी आर गोइंग टू कलेक्ट फैक्ट्स, लेकिन फैक्ट्स में यूनिकनेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मैथ का नंबर ले लिया और एक आपने ले लिया बायोलॉजी का, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। सो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स फर्स्ट, देन अफेक्टेड बाय मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि ये जो नंबर मैं कलेक्ट कर रहा हूं, इस पे कई चीजों के इफेक्ट पड़ते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये देखो, ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर का डाटा मैंने कलेक्ट किया, लेट अस से कि वीट की प्रोडक्शन इतनी हुई। जब मैं कहता हूँ वीट की प्रोडक्शन इतनी हुई, तो इस वीट की प्रोडक्शन पर कई चीज़ों ने इफेक्ट डाला। रेनफॉल ने इफेक्ट डाला, फर्टिलाइजर ने इफेक्ट डाला, क्लाइमेट ने इफेक्ट डाला। सो एनी इफेक्ट यू आर कलेक्टिंग दैट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। आगे देखते हैं, ये सेकेंड हो गया। देखो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, which is again very important, third one, this is third, this is second, मैंने वैसे यहां कर दिया। numerically expressed, we are not going to deal with qualitative statements, only numerically expressed statements। क्या मैं कहूं जी he is rich, he is poor, doesn't mean anything। numerically, कि उसकी इनकम, पर कैपिटा इनकम, और उसकी इनकम से 10,000 रुपीज है, जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की इनकम से ज़्यादा है। जब वो सारे को स्टडी करूंगा और कहूँगा इसकी इनकम 10,000 है, numbers, we are going to deal with numbers, we are not going to deal with qualitative statements, that is third। then enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। देखो, एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि statistics is not a 100% science, it is science of averages। आपको definitions अगर आप स्टडी करते जाओ तो आपको ये definition भी मिल जाएगी। it is science of averages। हम इसमें कभी भी एग्जैक्टनेस की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ एवरेज की बात करते हैं। तो ये जो है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि मोर देन 50% से 70%, 80% रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होगा। लेकिन आप अगर कहो 100% एक्यूरेसी है, तो स्टैटिस्टिक्स में 100% एक्यूरेसी नहीं होती। इट इज साइंस ऑफ एवरेजेस। देन कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, दैट this data has to be collected in systematic manner, collected in systematic manner।
कि भी इसको ऐसे नहीं हैब्जर्ड वे में नहीं कलेक्ट करना, इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपने कलेक्ट करना है। एंड फॉर ए प्री डिटर्मिनेड पर्पस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये डाटा आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने अभी कहा मैथमेटिक्स का पूरी क्लास का डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि एक डेफिनेट पर्पज़ है। मैंने रिजल्ट देखना क्लास का, देखना कितने फर्स्ट डिविजनर है, कितने सेकंड डिविजनर है, कितने थर्ड डिविजनर है। तो मेरे पर्पस क्यों ये डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को पर्पस का पूरा पता होना चाहिए कि मैं हरियाणा के पॉपुलेशन के इनकम के डाटा को इकट्ठा करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरी इनकम को, हर एक इंडिविजुअल की इनकम को कलेक्ट करके उसकी एवरेज निकाल के पर कैपिटा इनकम निकालना चाहता हूँ। उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके कि ये पर कैपिटा, ये इनकम का डाटा आ गया पूरे हरियाणा की स्टेट का, उसको इतनी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया तो ये पर कैपिटा इनकम मिला। दैट इज मेरे को पर्पस ऑफ क्यों मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डाटा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, अभी आपको मैंने कहा ये नहीं है कि एक मैथमेटिक्स का फिगर एक से फिगर उसका बायोलॉजी का, ये नहीं, ऐसा डाटा जो एक दूसरे की रिलेशन में प्लेस किया जा सकता है कि मैथमेटिक्स में ए स्टूडेंट के इतने नंबर हैं, बी के इतने हैं, सी के इतने हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का था वीट प्रोडक्शन इन से यमुनानगर इज इतना, अम्बाला इतना, करनाल इतना, एक ही चीज़ है, वीट ही है। ये नहीं एक का वीट ले लिया, एक का राइस ले लिया, एक का शुगर केन ले लिया, दैट विल मेक नो सेंस। दैट इज दिस मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नाउ ये देखो मैंने आपको कहा ये 7 हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं करेक्टरिस्टिक्स करूंगा, नथिंग, यही 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं को थोड़ा सा आप इलेबोरेट, जो मैं बोल रहा हूँ वो इलेबोरेट हो जाएगा। देखो अब इसको, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। की स्टैटिस्टिक्स है क्या, वही चीज़ जो मैंने अभी बोली, इसी को आपने देखना, मैंने इसको बता देना है कि क्या स्टैटिस्टिक्स, ये देखो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल नंबर मेक्स नो सेंस। आपने कलेक्शन, एक जैसा डाटा कलेक्ट करना बाई फॉर ए ग्रुप, नॉट फॉर ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डाटा को हम स्टडी नहीं करते। आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ उसी डाटा का मतलब है जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी आपको बताया क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स का इस स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब नहीं। देन बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैंने कहा कि दे आर स्टैटिस्टिकल डाटा इज affected by number of factors such as, for example, sale and production depends on number of factors. Production और sales डिपेंड करती है प्राइस पे, क्वालिटी पे, कंपटीशन पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड सो ऑन। एक ही चीज़ पे कई चीज़ों के इफेक्ट, कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी सेल होगी, ये डिपेंड करती है प्राइस पे, ये डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी पे, कंज्यूमर क्या सोचता है आपके बारे में। सो दिस इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट। ये भी आपसे मैंने बात भी की कि स्टैटिस्टिक्स में जो हम नंबर की बात करते हैं, वी टॉक ओनली अबाउट एवरेजेस, वी डोंट टॉक अबाउट एग्जैक्ट नंबर, इट इज़ ए साइंस ऑफ एवरेजेस। देन देखो ये कुछ नहीं, वही 7 और एक डेफिनेशन आपने याद कर ली, सातों के सातों फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। आगे देखो, दिस इज 5th 6th 7th। अभी आप उस डेफिनेशन को भी अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको यही नंबर्स उसमें मिलने वाले हैं। देखो क्या है, जस्ट सी स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। मैंने कहा कि एक सिस्टमेटिक मैटर में आपने डाटा को कलेक्ट करना है। अनसिस्टमेटिक मैनर में अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो, दैट विल नॉट लीड टू एनी कंक्लूजन। शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ये भी आपको बताया कि डाटा ऐसा होना चाहिए जिसमें होमोजेनिटी हो। होमोजेनिटी का मतलब, जैसे मैंने कहा करनाल की वीट की प्रोडक्शन, अम्बाला की वीट की प्रोडक्शन, हिसार की वीट की प्रोडक्शन, यमुनानगर की वीट की प्रोडक्शन, सब में वीट की प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा कि यमुनानगर राइस, करनाल शुगर केन, हिसार राइस वीट और चौथा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कुछ और। इनको आप रिलेशन में नहीं डाल सकते क्योंकि डाटा सेम नहीं है। इट विल नॉट लीड टू एनी कंक्लूजन। अगर आप चारों डिस्ट्रिक्ट जिसकी बात की उसको एक वीट का डाटा, एक राइस का डाटा अलग अलग इकट्ठा करते हो तो आप बताओगे कि वीट में ये प्रोडक्शन में ज़्यादा है,
डिस्ट्रिक्ट ये राइस में है। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का डाटा कलेक्ट होता है कि होमोजेनिटी इज द बेसिक फैक्टर फॉर द स्टैटिस्टिक्स डाटा। देन लास्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमिन्ड पर्पस, कि आप डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हो, इस पर्पस की भी क्लैरिटी आपके दिमाग में, जो इन्वेस्टिगेटर है उसके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाई यू आर कलेक्टिंग डाटा ना। जस्ट होल्ड ऑन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो आ गया प्लूरल सेंस। What is singular sense? Singular sense talks about methods of statistics. That is these four: collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data. इसी को हम stages of statistics भी कह देते हैं। जस्ट देखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो प्लूरल सेंस में बोल रहा हूं मैं, इन सिंगुलर सेंस सॉरी, इट इज साइंस comprising the methods which are used in collection, analysis। क्या methods use कर रहे हो collection में, analysis में, interpretation में, presentation में, numerical data। ये 5 चीजें मैंने बोली क्या, कि how you are collecting data, how you are organizing data, how you are presenting data, how you are analyzing data, how you are interpreting the data। that is the statistics in सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में तो जस्ट कह दिया साइंस ऑफ नंबर्स कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सेंस में आप बात करते हो मेथड्स की, कैसे डाटा कलेक्ट किया, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया, कैसे उसको प्रेजेंट किया, कैसे उसका एनालिसिस किया, कैसे उससे इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स निकाले। सो आई होप दोनों में डिफरेंस। जो प्लूरल सेंस है वो जस्ट एक डेफिनेशन साइंस ऑफ नंबर्स कह के वो आप फिनिश, सिस्टमेटिक मैनर में होने चाहिए, साइंस ऑफ नंबर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम मेथड्स की बात करते हैं कि कैसे कलेक्ट करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो, एंड हाउ यू आर ड्राइविंग द रिजल्ट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। इसको हम सबसे लास्ट में आएंगे सब्जेक्ट मैटर पे, इससे आगे चलते हैं। दोबारा आऊंगा इस पे। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है। डेफिनेट, numerical expressions are convincing, and therefore one of the most important function of statistics is to present general statements in a precise and definite manner। कि इस तरह आप इसको प्रेजेंट करना चाहिए आपको, बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में, डेफिनेट फॉर्म में, ताकि दे आर इजी टू इंटरप्रेट, ठीक है। देखो, इन प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स कन्वेड इन एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव टर्म आर ऑलवेज मोर कन्विंसिंग देन वेग अटरेंस। एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव टर्म में कोई स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादा डेफिनेट होती है कि मेरी सालाना इनकम से 2 लाख है, और एक स्टेटमेंट देता हूँ माई इनकम इज़ वेरी लो। इसका वेरी लो में क्या रिजल्ट निकला, कुछ नहीं। एक डेफिनेट फिगर दिया मैंने कि 2 लाख है, तो इसको ये कंपैरिजन में इन कंपैरिजन टू अदर्स कितनी ज़्यादा है कम है मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक डेफिनेट होनी चाहिए, वेग टर्म्स का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये तभी हम कहते हैं डेफिनेट, क्यों? क्योंकि ताकि कंपैरिजन जो है इजीली हो सके। कंडेंसेशन, that not only does statistics present facts in a definite form, but it also helps in condensing mass of data into few significant figures। बड़े डाटा को करके छोटा करके उसका एग्जैक्ट कंक्लूजन निकालता है। जैसे मैंने पूरा कहा अभी कि हरियाणा की इनकम निकालने के लिए मैंने पूरे स्टेट की इनकम कलेक्ट की, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया, एक फिगर मिल गया पर कैपिटा इनकम, ठीक है। डाटा को कंडेंस करके आपको सिंपल वे में रिजल्ट देता है। देन कंपैरिजन, कहता है देन ही सेज कि स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं जब तक वो डाटा एक दूसरे से कंपेरेबल ना हो। कि कंपेरेबल डाटा की बात करते हैं जो विच कैन बी कंपेयर्ड विद अदर्स। विदाउट कंपेरिजन वहीं से फीचर्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स से ये फंक्शंस भी निकल रहे हैं। देन नेक्स्ट देखो, फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने लगते हो
तो दिमाग में एक आइडिया बनाते हो कि ये आइडिया है जिसको मैंने करना है। कि मैंने कहा जी ये मैंने पेन गिराया तो ये नीचे ही आता है, एक हाइपोथेसिस ले लिया कि एवरीथिंग विच फॉल्स फ्रॉम अबव मस्ट गो डाउन, एक हाइपोथेसिस ले लिया दिमाग में। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मैंने 10 चीज़ें उठा ली और उनको ऊपर से गिरा के देखा कि नीचे ही आ रही है, ये ऊपर जा रही है। डाटा कलेक्ट किया इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि एवरीथिंग विच फॉल्स फ्रॉम अबव मस्ट गो डाउन। वो डाटा जो है वो मेरे को कहता है इस पॉलिसी मेकिंग में आगे हेल्प होगा। उस हाइपोथेसिस की कितनी ट्रुथफुलनेस है, ये हाइपोथेसिस है कल्पना, कि मैंने कल्पना की ऐसा होगा। इस कल्पना में की हकीकत देखने के लिए मेरे को डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा से रिजल्ट निकालना है। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। प्रेडिक्शन, कि डाटा जो कलेक्ट किया इसके बेस पे आप प्रेडिक्ट करते हो। हर साल आपका जो मौसम विभाग है वो प्रोडिक्ट कर देता है ये मार्च अप्रैल में कि आने वाला मानसून कैसा होगा। वो डाटा कलेक्ट करते हैं, एल नीनो इफेक्ट, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये सारा फैक्ट्स इकट्ठा करके कि क्या क्लाइमेट है, क्या टेम्परेचर है, ये जो हवाएं चल रही हैं से पैसिफिक से आ रही हैं या अरेबियन सी से आई हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है, ये सारा वो करके कहता है प्रोडिक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम में मानसून ठीक होगा या नहीं। जैसे अगर आपने खबरें सुनी हो तो पिछले दिनों में उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इस साल अबव नॉर्मल मानसून होगा। वो कैसे किया, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा के बेस पे प्रोडिक्शंस की कि भाई ये इस डाटा, ये हमारे पास बेसिक डाटा है, इस पे बेस पे हम प्रोडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो रेनफॉल है वो अबव नॉर्मल होने वाला है। सो इट हेल्प्स इन प्रोडिक्टिंग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। नेचुरल है, जब डाटा मेरे सामने आएगा तो मैं उसके बेस पे पॉलिसी कलेक्ट कर सकता, पॉलिसी फार्मूलेशन कर सकता हूँ। जैसे आपको पता हरियाणा में सेक्स रेशो, दैट इज़ मेल फीमेल चाइल्ड रेशो, वो बहुत कम हो रही है। वो उसे 875 का मतलब है पर 1000 बॉयज़ कितने फीमेल्स होते हैं, 875, 890। तो गवर्नमेंट ने पहले ये डाटा कलेक्ट किया कि फीमेल पॉपुलेशन इसकी बर्थ इन कंपैरिजन टू मेल पॉपुलेशन, इनका बर्थ 875 to 1000 हो गया। तो गवर्नमेंट इज वरीड। So what it is doing on the basis of data, it is formulating policies that how to correct this adverse sex ratio, मेल फीमेल रेशियो को कैसे करेक्ट किया जाए, इसके लिए उन्होंने पॉलिसीज। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन दैट आल्सो। नाउ मूविंग अहेड, लिमिटेशन, ये तो बात होगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या फंक्शंस हैं। अब स्टैटिस्टिक्स कहाँ लिमिट हो जाता है, लेट अस स्टडी नाउ कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो काफ़ी कुछ तो आपको समझ आ गया होगा। क्या, पहला तो यही है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, कि मैंने अभी आपको बार बार कहा कि स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स का कोई मतलब नहीं। जब तक ग्रुप ऑफ डाटा नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं कर सकता। ये पहले लिमिटेशन। क्या, ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ तक जा सकता है ये बता रहे हैं। डील ओनली विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, ये भी आपसे बात कर चुका कि क्वालिटेटिव फिगर्स का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। वी टॉक ओनली अबाउट क्वांटिटेटिव फिगर्स। फ्रेंड्स देखो, ये जितने मेरे स्लाइड्स हैं ये कंप्लीट इनफैक्ट नोट्स ही हैं। आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, इसके बाद इसको डाउनलोड करके ये अपने पास रखो और यही आपके नोट्स बन जाएंगे। कंप्लीट नोट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसकी लिमिटेशन, इसके फंक्शंस, इसकी इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग इज देयर। आपका पहला चैप्टर पूरा है। अगर आप इसको पढ़ लोगे यू विल फील कंफर्टेबल इन फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ये भी आपसे मैंने बात की। स्टैटिस्टिक्स में कभी भी हम 100% की बात करते ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एवरेजेस, हम 100% की बात नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स की ये लिमिटेशन कह लो या ये कह लो कि ये स्टैटिस्टिक्स की एक चीज है, कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। कैसे? कहता है कैन बी मिसयूज इजिली। कहता है डाटा कलेक्ट हो गया, अब ये डाटा किसी और के हाथ में लग जाए तो वो इसका इजीली मिसयूज़ कर सकता है। डाटा कई तरह का होता है, डिफेंस का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये किसी के हाथ में लग गया तो वो मिसयूज़ हो सकता है। डाटा का
अगर गलत आदमी के हाथ में चला गया तो वो उसको डाटा को मिसयूज भी कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज इजली। मेथड कैन बी प्रॉपरली यूज्ड ओनली बाय ट्रेंड पीपल। अगर ट्रेंड, दूसरी बात वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मिसयूज हो सकता है और ये सिर्फ एक ट्रेंड आदमी से ही यूज करवाना चाहिए। अनट्रेंड आदमी जो है इससे कंक्लूजन गलत निकालेगा। देन इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम, कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये सिर्फ एक मेथड है, ठीक है। इट इज़ नॉट द ओनली मेथड। इस तरह के कई और मेथड्स हैं जो जिसके बेस पे आप रिजल्ट्स निकालते हो। लास्ट, शुड बी सिमिलर इन नेचर। ये भी बात की आपने कि डिसिमिलर डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स में कोई मतलब नहीं रखता, कि डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का डाटा तो पॉपुलेशन का होना चाहिए पूरा, एग्रीकल्चर का डाटा तो एग्रीकल्चर का होना चाहिए। तो पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर कंपैरिजन जो है वो नहीं बनेगा। तो एक जैसा डाटा शुड बी सिमिलर इन नेचर। ये हो गई लिमिटेशंस। इसके बाद पार्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ कहा इंपॉर्टेंस फॉर स्टेट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस फॉर स्टेट, बिकॉज आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाटा आप डिफरेंट पॉलिसी बना सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। तो स्टेट इसको यूज़ करता है टू कलेक्ट डाटा एंड टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड टू फार्मुलेट पॉलिसीज। प्लानिंग भी तभी वही बात कही कि किसी भी चीज़ की प्लान करने के लिए आपको डाटा चाहिए। देन इकोनॉमिक्स कहता है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, वी यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टू डेवलप द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं, चाहे वो ग्राफ्स है, अभी आप स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, इकोनॉमिक्स वाले इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन। और मैं ये कहता हूँ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इनसेपरेबल है। देन नेक्स्ट आप देखो बात वही आती है टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस। कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने से पहले उसके रिलेटेड की क्या कंज्यूमर की डिमांड है, क्या मार्केट सिचुएशन है, क्या इसका रॉ मटेरियल, इसका सारा डाटा वो कलेक्ट करता है। उसी के बेस पे आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, नया बिजनेस लॉन्च करेंगे। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस ऑल्सो। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू मैथमेटिक्स, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स कहा, दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, एक पार्ट हमने बीच में छोड़ दिया था, उसको देख लें क्या है वो था ये सब्जेक्ट मैटर। कहता है सब्जेक्ट मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, विच इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। कहता है ये वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो descriptive statistics is concerned with describing or summarizing the numerical properties of data. The methodology of descriptive statistics include classification, tabulation, graphic representation, वही जो 4 स्टेजेस आपने की हैं। देन इन्फ्रेंस का मतलब होता है उस बेस डाटा के बेस पे आप कैसे रिजल्ट्स निकालते हो। इन्फ्रेंस इज कंसर्न्ड विद डेरिवेशन ऑफ साइंटिफिक इन्फ्रेंसेस about generalization of results from study of few participants, कि कुछ की स्टडी करके आप पूरे के बारे में रिजल्ट निकालते हो। आजकल देखो ओपिनियन पॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे, वो क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उन्होंने 2 करोड़ की पॉपुलेशन से जाके कलेक्ट किया? नहीं, वो क्या करते हैं, 6 सैंपल ले लेते हैं, 10,000 का सैंपल ले लिया, 10,000 की पॉपुलेशन का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया उसको वो पूरे पे अप्लाई करते। दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे वो ब्लड टेस्ट करते हुए जरा से ब्लड से वो पूरी बॉडी का आपके स्कैन कर देते हैं, दैट इज इन्फ्रेंस। सेम वे स्टैटिस्टिक्स का डाटा जो है वो जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि कुछ डाटा के बेस पे आप पूरे कि ये रिजल्ट आ रहा जी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जीतने जा रही है इस 10,000 के सैंपल के अकॉर्डिंग। दिस सैंपल, वही बात आ गई, इट मे बी करेक्ट
मे नॉट बी करेक्ट, 100% की बात तो हम करते ही नहीं, जनरलाइज एवरेज निकल आएगी, एक जनरल सा रिजल्ट निकल आएगा कि हाँ भाई लगता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, लगता है, एग्जैक्ट की बात हम नहीं करते। फ्रेंड्स देखो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन फर्स्ट चैप्टर है, और पूरे स्टैटिस्टिक्स में एक ये और एक मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये दो आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेंगे लेकिन करने तो हैं ही हैं। तो इसलिए आप सबसे ये है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ो। फिर कह रहा हूँ ये स्लाइड्स पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, इनकम्प्लीट नहीं है, आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करो। और लास्ट में फिर फ्रेंड्स वी आर लुकिंग फॉर योर सपोर्ट, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, तभी हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। सो फ्रेंड्स सी यू अगेन, एंड यही प्रोसेस हमारा रहने वाला है कि कुछ एक चैप्टर माइक्रो का, फिर मैक्रो का, फिर माइक्रो, इस तरह ताकि वो बैलेंस बना रहे और आप क्लास में भी पीछे ना रहें कि अगर टीचर ने एक पोर्शन शुरू किया है आप दूसरे पोर्शन पे, दैट विल क्रिएट ट्रबल। सो फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन।